I must have been this small a kid when his first solo album, Divana and Bijuria, came in the 90s. While he became a heartthrob, so did I in front of schoolboys and young girls in school and college when I played his song on my keyboard and guitar. While he continues to be the heartthrob of this country after having done playback singing for many a superstar. Joining me today on the show on the New Indian Cash the Stars is none other than Sonu Nigam himself, my heartthrob and my childhood sensation as well. मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना ना सोना मन का आंगन किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना. What a pleasure it has been to follow your career over the last 25 years for me as a journalist and also for me as a kid who saw you performing and becoming a sensation for us young boys and girls during that era. I still tell my colleagues in journalism that whenever we would feel sad of journalism and whenever we would get bored out of the news events every day to chase one event to another, it were your songs that came as a relief to us in those times of solitude when we had no family to support us in those areas where we reported from. Which is why, I mean, the first question which I want to ask you is, what an incredible career that you have had over the last 2 decades or more. For someone who has done playback singing for the Khans to the Kumars, from one blockbuster movie to another, what is the essence of freedom for you, Mr. Nigam, in the 75th year of India's independence? थैंक यू वेरी मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इतनी अच्छी अच्छी शब्दावली में मेरा इंट्रोडक्शन किया. थैंक यू. इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी. इट इज़ स्टिल अ ब्यूटिफुल जर्नी. बहुत अच्छी चल रही है और मुझे इट हैज़ बीन अबाउट 31 years of being in Mumbai and being famous. So it's been more than 3 decades in Mumbai because as you know I was from Delhi. Right. But as a child, I did stay for four years and studied in Mumbai in the 80s. But major part of my childhood was in Delhi. What part of Delhi was this? West Delhi, from Patel Nagar to Baljit Nagar to Vivekanand Puri to Derawal Nagar to Gulabi Bagh. We have changed a lot of homes. Right. 7 schools I've changed because my family was very. They wanted. It was a desire of my family to. ये level पे रुकना नहीं है. To not stagnate. So right. It is. We'll talk about it later on. Ji. So yes, the journey was real. I have been singing on stage for the last 45 years. It's been on professionally on stage for 45 years. तो इतनी अच्छी जर्नी किसी को मिले बहुत खुशी होती है और इस देश ने हमें बहुत इज्जत दिया, बहुत प्यार दिया. तो ऑब्वियसली अगर नॉर्मल सिटीजन भी हो तो भी उसको अपना देश प्यारा होता है. तो जिस इंसान को उसके देश ने इतना दिया हो तो उसको कितना और ग्रेटिट्यूड होगा अपने देश के लिए. Absolutely. तो हमारे देश ने हमें बहुत दिया. Father, your mother taught you how to fight steadfastly in support of your career, how to be a fighter. आपके जो गाने थे अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि उन्होंने हमें बड़ा इन्फ्लुएंस किया, चाहे वो हमारे पर्सनल करियर्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बॉर्डर मूवी हो, कल होना हो, चाहे वो आपके सोलो एल्बम्स हो. दिल को छूने वाली वो एल्बम्स होती थी. मुझे एज अ जर्नलिस्ट मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, और मुझे इस बात का गर्व भी है कि आपके सॉन्ग्स ने हमें दिल से छुआ. तो आपने फाइट की बात करी, उस फाइट को आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कैसी वो फाइट और फाइट बैक्स रही हैं? हम एक टिपिकल भारत की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और हमारे माँ बाप भी सिंपल लोग ही रहे हैं हमेशा. मम्मी तो अब है नहीं जी. पापा हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, अभी भी बहुत अच्छा गाते हैं पापा तो जी. और तो उन्होंने हमें यही सिखाया हमेशा कि नॉर्मल रहो, खर्चा वर्चा करने की, ये फिजूल खर्ची वगैरह नहीं. और हमारा पूरा बचपन वैसे ही बीता था कि हमने कभी ज़्यादा ना हमने मांगा भी नहीं. मैंने, मेरी बहन ने, मेरी छोटी बहन तो बाद में पैदा हुई, बट मी एंड माय सिस्टर, द मिडिल सिस्टर मीनल, वी नेवर आस्क्ड पेरेंट्स फॉर एनीथिंग. वी जस्ट सेड जो है दे दो, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है. सो वी वर अ फैमिली हु वाज ऑलवेज वेरी बैलेंस्ड. राइट. सो देयर वाज नो नीड टू बी टॉट द आर्ट ऑफ फाइटिंग और द स्ट्रगल. It was a collective struggle. It was a relay race, which was started by my parents, and then I took the baton later on. And my sisters, of course, they're very brilliant in their own ways. My middle one is a yoga teacher, healer, a wonderful singer. She does
devotional music concerts and everything. Meena Nigam, Tisha is another great singer. She's done so many songs and films and everything. Right. So हमारी फैमिली में हम लोग 2 जनरेशन के वो रहे हैं. माँ बाप ने एक जगह तक लेकर गए और कभी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी. बस माँ बाप, मम्मी ने ये सिखाया कि सर झुका के चलो, बड़ों का आशीर्वाद लो. फिर ये मम्मी बोलती थी मंडे को ये मत खाओ या मंदिर में जाओ, ट्यूसडे को. तो हमने सब फॉलो किया. क्योंकि मेरी माँ ने हाँ मंडे को शिव जी के मंदिर में जाओ, और तो वो हमने काफ़ी समय तक किया. फिर एक समय पे जब हम समझ जाते हैं अपने अध्यात्म को जी, देन हम जाते हैं, फिर हम सब में भगवान देखते हैं, फिर आप में ईश्वर देखते हैं. फिर जी. बट मम्मी वाज द वन हु इनकलकेटेड ऑल दीज थिंग्स. राइट. कि हनुमान चालीसा याद करो या ये आरती करो. और फिर हमारी माँ बड़ी, माँ बाप दोनों, कि मतलब सैयद भूरेशाह बाबा की दरगाह पे भी जा रहे हैं और तिरुपति भी जा रहे हैं और हाजी मलम बाबा की दरगाह पे भी जा रहे हैं. मतलब इट वाज अ फैमिली व्हिच वाज नॉट एक संकीर्ण दिमाग की फैमिली नहीं थी. राइट. और जो कि होना चाहिए, जैसे भारत में होना चाहिए. तो those values are still ingrained inside you. बिल्कुल. And passed on to your son as well. ऑफ कोर्स. तो हम जब मुंबई आए तो बस एक ही लक्ष्य था, क्योंकि हम दिल्ली में अच्छा कमा रहे थे उस समय. क्योंकि मैं बड़ा हो गया था. बड़ा मतलब मैं वाज जस्ट 14.5 की एज में मेरी आवाज़ मैच्योर हो गई थी. Right. So I could do concerts and my father was already the top singer. So both the men of the house were earning. Correct. So to एक चलता हुआ काम छोड़ के Right. यहाँ पर बसों में, स्कूटरों में और पैसे बचाना, और क्योंकि हमने यहाँ पे शोज नहीं किए. पापा ने कहा था कि तू यहाँ पे शोज नहीं करेगा, तेरे ध्यान बढ़ जाएगा. यहाँ तो सिर्फ फिल्म गाने करेगा. ठीक तब है. इतना आपको एल्बम तो उतने होते नहीं थे. Correct. एक ही तरीका था, बस कंपोजर से मिलो, उनको गाना सुनाओ और वेट करो. पैसा दिल्ली में जाके शोज करके कमा लेंगे, यहाँ शोज नहीं करेंगे. Right. So where did you used to stay at that time, in that era? फर्स्ट टाइम हम लोग रहे थे एक बैंड्रा में, एक होटल था जहाँ पे धर्मेंद्र साहब भी पहले आए थे. मेरे पापा को पता था. मानसरोवर होटल था वहाँ पे. अब वो होटल है, मतलब वो बिल्डिंग है, होटल नहीं रहा अभी. मैं देखने गया था, मुझे बड़ा दुख हुआ. मैं बैंड्रा में था वो. फर्स्ट टाइम हम वहाँ गए, एक हफ्ता वहाँ रहे. देन एंटा हिल में मेरे चाचा, उस समय ही वॉज द POE, प्रोटेक्टर इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो जी. तो उनके हम घर में कुछ टाइम रहे. फिर हमने एक किराए का घर लिया बुखरवाला में. फिर हमने अपने दिल्ली से थोड़ा सा, मेरे फिर जब लगा कि थोड़ा काम चल सकता है तो फिर हमने एक और घर लिया जहाँ पे हम शिफ्ट हुए. फिर उस घर को हमने खरीद लिया बाद में. राइट. फिर उसके बगल वाला घर भी खरीद लिया जब थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ. तो उस घर ने हमें कामयाबी दिखाई. राइट. तो जो भी एल्बम्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, संदेश से आते से लेकर जो भी, वो उस घर में होता, मेफेयर अपार्टमेंट्स में. इवन टुडे दिस हाउस दैट यू आर सेइंग, दिस डजंट हैव अ लॉकर because we don't keep any You don't money. believe in this. We don't keep any money. It's always through my father. So when my wife wants some money, she will ask me. I will ask Saira sitting over there, because अगर या तो मैं Saira will ask my father, and then my father will send money or whatever, transfer money or whatever. So even today, ये सही में है सर? अभी तक तो घर का बॉस मेरे फादर है. He's a king. अभी भी सारा डिसीजन उनके हाँ के बिना होता नहीं है. तो मेरी जेब में अगर 10,000 रुपए आने होते हैं तो वो सायरा के थ्रू आते हैं. Right. मेरे फादर ऐसे आते हैं. कितना आपको एक नर्वसनेस होती थी और कितना आपको कॉन्फिडेंस भी होता था फॉर हैविंग संग फॉर द एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और आमिर खान. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द बिग बैनर फिल्म्स or the big actors who you did the playback singing for? Even till today, mostly it is the music composer who has the choice of choosing the singer. Sometimes his decision can be overruled by a director or a producer at times when they are very sure that they don't want this particular voice and they want that particular voice. But generally, it's a music composer. So, well, it was always, when I was new, it was exciting to be singing for people who were superstars at that point, like Shah Rukh Khan. Amir I sang for very late, 2001 Tanhai, but Shah Rukh Khan, Salman, I was already singing for them. Akshay Kumar and everybody. So it was very exciting, and obviously one would want to be a part of a project which is consequential, which is going to be marketed well, which is going to be on a good pedestal. So it was always a challenge, a task to deliver your best. Having said that, one has to strike I believe in the right balance. You can never be too nervous, you can never be too confident. You have to be somewhere in between. Right. The nervousness will inspire you to be better. The confidence will take care of the nervousness and will take care of your complexes, if at all you have it. Right. So the balance of, even today when I was singing 2 songs night before yesterday, even though I sang the first song in one take, I gave
45 more minutes to give different options so that this can. So we still work on the song. Right. We still are not very overconfident, and you can never be too confident and too sure. You have Absolutely. to give time. You have to pay attention, because God lies in detailing. But how was your experience working with the music composers like Anu Malik, A.R. Rahman, Himesh Reshmiya, Sajid Wajid? Tell us what one distinct quality that you found in each one of them as you grew in your career along with them as well. The most important part in my initial journey of music has been played by Mr. Anu Malik. Anuji is my senior, and a very aggressive man, a very ferocious man, a man with a lot of energy. It's very inspiring to see him still hell-bent and passionate, to always make a mark, and hats off to him, because he has been there from the 70s, by the way. And even in this decade, he's capable of giving music, and he has done some phenomenal music. Absolutely. In the recent movies of Paltan, which I sang for, and Ye Momo Ke Dhage also. And so he and I, for the first time, met when I was 14 and a half years old, and I was participating in National Ghazal competition. He was a judge. The videos are there, and maybe someday we'll get them uploaded sometime All right. on YouTube. But yeah, I was performing there, and he gave me the first prize, and he told my family members that ये जब बड़ा होगा ना, इसको मेरे पास लेकर आना. I was just 14, so my voice was आधी खिली हुई थी, आधा खिला हुआ फूल था मैं. जी. So he said ये तगड़ा बनेगा अभी चल के. So the moment me and my father landed after 4 years He rediscovered in you. Delhi. No, we went to him. हमने ट्रेन से उतरे, and we went to the hotel and नहाए. Immediately the first person we went to was Sachin Pilgaonkar जी, because उन्होंने मुझे दिल्ली में, उन्होंने भी मुझे अवार्ड दिया था, and he knew my father and he knew me also, because my father was always a very respected singer. So he said, अगम भाई ये तो बड़ा होगा, इसको मैं लॉन्च करूँगा, ये बड़ा होगा, मुझ पर लेके आना इसको. So we did the same. 2 people told us this thing. So the first house was Sachin Pilgaonkar in the evening. Then we went to the hotel, and next morning the first place was Anu Malik ji. He was very kind, very nice, and he made me sit and heard my voice, and he said, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. And then वो relationship थोड़ा बनता गया. He didn't have too much work at that point, and suddenly he shot up in fame. He became the most successful composer in front of my own eyes. And then gradually we started working. He was, he just trusted me. And then Border was the movie which you were. Oh, 97. हाँ. First. But it took him 5 years to give me Border. अच्छा. उसके पहले हम थोड़े बहुत काम कर रहे थे, but Border जैसा बड़ा काम आने में 5 साल लग गए हमको. Right. So struggle इतनी easy overnight नहीं था. Even though Anu Malik ji liked me, but समय नहीं आया था. टाइम आना चाहिए किसी का. जी. तो वो था. Then नदीम शबन की गाना मुझे मिला, ये दिल दीवाना, सुभाष गई. It was such a beautiful experience कि 97 में एक गाना परदेश का आ रहा है, ये दिल दीवाना, एक गाना संदेश से आता है, patriotic song. So one singer singing both the songs, and both the songs are hit. So एकदम हल्ला मच जाता है ना कि ये टाइप कास्ट सिंगर नहीं है. बिल्कुल. काफी गा सकता है. लेकिन उस दौरान मुझे याद है आपके जो 2-3 गाने थे ना सोनू जी, वो एक रेज भी बन गए, चाहे वो हो ये दिल दीवाना या फिर जिंदगी मौत ना बन जाए जो आपने निकल गया. बड़ा वो तो सरफरोश का तो मुझे याद है कि एक बड़ा पेट्रियोटिक भी सॉन्ग था. उसमें तो आज भी वो बीएसएफ की कई सेरेमनीज पे चलता है. अगर वो चलता है, संदेश से आते तो ये भी उतना ही चलता है. और उस दौर में शायद गोविंदा के भी मुझे याद है बड़ी आपने यूपी वाला ठुमका लगा, अखियों से गोली मारे, बेकरार में बेकरार. और फिर आपने धीरे धीरे सलमान के भी गाने उठाए, जीने के हैं 4 दिन. बिल्कुल. फिर थोड़ा सा शायद एक मैच्योर सिंगिंग के तौर पे आप आगे निकले, कल होना हो में जब आप आए तो तन्हाई, साथिया, कभी अलविदा ना कहना. So God has been kind. As music changed, लोगों ने मुझे अच्छे गाने दिए. मैं एक गाता हूँ, आप मुझे बताइए मैं क्या गाऊँ, बताइए आपके. दीवाना और बिचौलिया और याद. तो अगर आप उस दीवाना सुनाओ, दीवाना का. अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है,
तुम्हारा ही ख्याल है। ओ आ, ला 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 ला, ओ आ, ला 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 ला। विच इज़ द डिस्टिंक्ट क्वालिटी दैट यू फाइंड? आपने अनु मलिक जी का जिक्र किया कि आपको इतने ब्रेक्स दिए उन्होंने और आपको आइडेंटिफाई भी किया। अगर मैं रहमान साहब की बात करूँ, हिमेश रेशमिया साहब की बात करूँ, साजिद वाजिद की बात करूँ, तो वो क्वालिटीज़ अभी भी आपको जो हैं जो उनकी तरफ खींची लेती हुई चली गई? देखिए, हर कंपोजर का अपना स्टाइल होता है और बड़ा मुश्किल होता है एक सिंगर को सबके साथ में मैच कर पाना। पर आप तो वर्सेटाइल रहे हैं इतने। हाँ, वो एक कृपा हो गई भगवान की। तो आ, मतलब चाहे वो ए आर रहमान हो या साजिद वाजिद हों, जतिन ललित हों, आनंद मिलिंद जी हों, कितने हमने कितने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। हिमेश के साथ में कितना अच्छा तो काम क्या कर क्या रखा है। खूबियाँ थी और क्या क्या खूबियाँ आपको नजर आती हैं उनकी अभी? हर इंसान के फन से, उसकी फनकारी से, उसके मन का पता चलता है। फन से मन का रास्ता। साजिद वाजिद तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारा बहुत प्यार था आपस बड़ा में। unfortunate हिमेश के भी दोस्त नहीं रहे, वो थोड़ा अलग है, बट बहुत अच्छे फनकार हैं वो भी। ए आर रहमान तो ऑब्वियसली सबको बहुत मास्टर। बहुत पसंद है। वो तो अपने आप में एक अलग चोजन वन है वो भगवान के, बहुत अच्छे है वो भी। तो एक से एक लोग, शंकर एहसान लोग कितने यादगार काम किए। कभी मेरा कार्मिक रिश्ता है भाई, बहुत अच्छा। फिर प्रीतम, जीत गांगुली, क्या क्या लोगों के साथ में मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, गाने किए हैं। सो बढ़िया है। अभी हमने प्रीतम के साथ में किया, लाल सिंह चड्ढा के 2 गाने किए, लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार किया है। मैंने शुरू में एक सवाल आपसे फ्रीडम के बारे में पूछा, आपने लाल सिंह चड्ढा का जिक्र किया, लेकिन जिस जगह से देश गुजर रहा है, एक बॉयकॉट की जो एक ये अपील आ जाती है कई बार कि लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट कर दिया जाए, डू यू अग्री विद दिस कॉल्स और डू यू लीव इट टू द फ्रीडम, वट एवर पीपल वांट टू डू दे शुड परस्यू दैट? देखिए, पहले क्या होता था कि मैं बहुत मेरा ओपिनियन होता है हर चीज़ में। फिर मैं एक टाइम पे समझा कि जिसने हमें पैदा किया ना, उसने किसी कारण से हमें पैदा किया है और उसको पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं सरेंडर करता हूँ। आई सरेंडर। जो हुआ अच्छा हुआ। गीता में भी लिखा है जो हो रहा है अच्छा। और मैं अपने ही बात करूँ, हमारी गीता में लिखा है ना बात, जी, जो हुआ वो भी सही हुआ, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा इवेंचुअली। करेक्ट। मेरी नज़रें कहाँ जाएंगी? मेरी नज़रें जाएंगी मेरे जो अजीज़ लोग हैं आसपास, उसका धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हैं, हाँ, मेरे आइडल मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार जी हैं। अब थोड़ी मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार में कोई फ़र्क थोड़ी मैं सोचूंगा कि कौन किस कि एक मज़हब का मुस्लिम है या है। हिंदू। हम क्या सोचेंगे? अगर मैं कुछ कमेंट करूंगा तो इट विल नॉट ऐड, इट विल ओनली फ्यूल द कंट्रोवर्सी। आई विल टॉक अबाउट द ब्यूटीज़ ऑफ माई लाइफ। तो मेरा सायरा मुसलमान है, मेरे जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो सिंधी है, एक मराठी है। तो अभी उस वी कांट आइडेंटिफाई पीपल थ्रू रिलीजन एवरीथिंग। आई विल ओनली से जो हुआ वो भी ठीक हुआ, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, आगे भी सब ठीक होगा। करेक्ट। किसी वजह से इट्स चर्निंग आउट, यूनिवर्स कुछ चर्न आउट कर रहा होगा। मैं किसी को क्यों दोष दूँ? तूने ऐसे क्यों किया, तूने बॉयकॉट क्यों किया, तूने किया तो इसने बॉयकॉट किया, ये भी बात फ्यूल ही करेगी बात को। Talking about the freedom, like you said, you were at one stage very opinionated. You like to express yourself, whether it was triggering outrage over one issue or the other. आपको बताऊँ मैं, बात ठीक है लेकिन मैंने एक बात और जानी है। और सबसे इंसान मर तब जाता है जब वो सीखना बंद करता है। When you are dead if you stop learning. One thing which I learned at a very early age is social media cannot change the world. Your comment will not change the world. Your opinions, you think कि मैं बोलूँगा तो कुछ रेक्टिफाई हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, जिसको जो मानना है वो अंधा होके मानेगा। वो कहते हैं ना, सोए हुए को जगा सकते हैं, जागा हुआ जो है, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसको आप नहीं जगा सकते। नहीं जगा सकते। तो जो फेनाटिक्स लोग होते हैं या जो कोई भी होता है जिसने ओपिनियन बना लिया है कि मैं तो यही मानूंगा, आपके स्टेटमेंट्स, आपके ओपिनियन उनको नहीं बदल सकते। But do you still agree, Sonuji, with the fact that when you had made a remark about azan that it should not be played on loudspeakers, there should be a restraint on that? And देखिए, लाउड स्पीकर के बारे में मैं बोलता था, मैंने एक बार बोला, उसके बाद में लोगों ने बोल दिया सर इसका भी गला काट दो, इसका वो कर दो, गंजा कर दो, वो कर दो। बाद में सऊदी अरब ने कर दिया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। सऊदी अरब ने करवा दिया, यूएई में भी कम होता है, सब जगह हो रहा है। मैंने जो कहा लोगों ने, फिर वही मैंने कहा ना कि मैं ना भी कहता ना
अगर मैं मन में सोचता तो ये हो जाता। करेक्ट। मैंने कहा जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा, जिसको नहीं मानना है नहीं मानेगा। आप Right. कितने भी सही हैं, राइट। मतलब बड़े बड़े समझदार लोग जो थे, जो Correct. आज के ज़माने में जर्नलिस्ट ही हैं, जो मैं नाम नहीं लूँगा, आपको बाद में ऑफ कैमरा बताऊंगा मैं, जी। इंग्लिश बोलने वाले बड़े सोफिस्टिकेटेड, वो भी ये कमेंट कर रहे हैं कि यस द अजान शुड नॉट बी प्लेड ऑन लाउड स्पीकर एंड सो शुड सोनू निगम सॉन्ग नॉट बी प्लेड। हम्म। क्या संबंध है इसका? हम्म। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या मैं मेरे गानों में, मतलब मैं क्या करूँ? मैं अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग। मैंने उसी ट्वीट में अगर गुरुद्वारे का भी जिक्र किया है, टेम्पल का भी जिक्र किया, तो मैं फेयर आदमी हूँ, करेक्ट। मैं फेयर हूँ। एब्सोल्युटली। मेरे तो नहीं 5 बजे बजते गाने भैया, हम्म। मेरे गानों को बुलाया कर तो नहीं लोग नाचते रोज सुबह, बिल्कुल। नहीं करते। तो फिर मैं कंपेयर, जहाँ मैं गाता हूँ वहाँ तो परमिशन ली जाती है, हम्म। वो इनक्लोज एरिया होता है एब्सोल्युटली। और 10 बजे के बाद नहीं होता, हम्म। सुबह नहीं होता। करेक्ट। क्या है? तो अब इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी अगर तुम नहीं समझना चाहते तो मैं समझ गया कि ये नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे। बिल्कुल। ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है। लेफ्ट वाले राइट नहीं मानेंगे, राइट वाले लेफ्ट नहीं मानेंगे। Sonu ji, once you were actually a favorite of almost all filmmakers, Karan Johar, David Dhawan, JP Datta, Subhash Ghai साहब। अगर मैं पूछूं, आपने म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में तो चुना नहीं, बताया कि सबकी अपनी फनकार है, बट हु डिड यू एंजॉय वर्किंग विद अमंग द फिल्म मेकर्स, कि जहाँ पे आपको एक सुकून भी मिला, एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन भी आई, और ये लगा कि अब ज़िंदगी का एक कंटेंटमेंट है विच आई हैव अचीव वर्किंग विद देम? आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद सो मेनी पीपल। अभी मैंने परसों किसी के साथ में पहली बार काम किया, बंगाली गाना गाया जिसका आज ट्रेलर भी आ गया, एंड आई क्राइड ऑन व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग एंड आई रेड द लिरिक्स, आई वेप्ट। तो उसके साथ भी मज़ा आया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वही लोग थे, ऐसे कई लोग होते हैं जिनके साथ में मुझे कई गाने याद हैं जो मुझे कंपोजर का नाम भी याद नहीं है, एंड मैंने वो गाने सुने और मैं बाहर जाके रो रहा हूँ फूट फूट के। So people touch you in certain many ways. Having said that, I have enjoyed working with Raju Hirani, JP Datta जी, Karan Johar of course, आदित्य चोपड़ा को बहुत भी लोग सब प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। ऐसे कई लोग हैं, जैसे एक डायरेक्टर है हमारे दोस्त हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, प्रेम किशन जी के बेटे, वो हैं, बहुत लोग हैं। Absolutely. ऐसे में नाम लेना मुश्किल, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू समबडी हु हैज संग्स ऑलमोस्ट more than 6,000 songs. तो उसमें मैं कैसे बताऊँ आपको? You mentioned about your incredible career with these directors and music composers. I also want to sort of congratulate you that this country put so much of faith and trust in you. So did the political leadership when they recognized and feted you with Padma Award, which something is a feeling of with such a sense of pride that every Indian, every compatriot, every countryman wants to have this memento inside their home. आपको कितना आज उस बात का एक फ़ख्र महसूस होता है कि पद्मा जैसा अवार्ड आपके पास में है, और जब आपको बाकी वो अवार्ड्स नज़र आते हैं, व्हाट डज इट मीन टू यू टुडे? चलिए, सच सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ आपको जो मैंने किया था। जी। मुझे ये लोग इसलिए 22-23 साल से बोल रहे हैं कि आपको इस साल, क्योंकि मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। 95 में सारेगामा शुरू किया था मैंने, एंड दैट सारेगामा की जो आज अगर आप सिंगिंग सुन रहे हैं लोगों की, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ the impact that Saregama and music, true people, true maestros coming in one show and talking about classical music. उसके पहले लोग क्लासिकल सीखते नहीं थे। करेक्ट। सारेगामा आया तो जिंदगी बदली लोगों की। Musicians started taking music seriously. आज जो गा रहे हैं आज, 25 साल पहले लोग ऐसे नहीं गा रहे थे। बिल्कुल। तो एक जनरेशन को मैंने खड़ा किया हमारे काम ने, हमारे इसमें। तो 98 से चल रहा था मेरे साथ में। इस साल आपको यूल बी द यंगेस्ट वन, जब मुझे फ़ोन आते थे बताते थे, आपको पता है गवर्नमेंट से लोग आते कि आपका नॉमिनेशन आया हुआ है ऐसे वैसे। तो पहले हमसे छोटे थे तो बड़ा इसके लिए वैल्यू थी बहुत, लगता है यार क्या, फिर किसी ने बताया, मैं आप सर आप मत कीजिए, हम लोग नॉमिनेशन भर देंगे। मैं बोले इस तरीके से चाहिए नहीं हमको, नॉमिनेशन भरा जाए, मैंने क्या किया है, मैंने यही अचीव किया, दिस इज़ नॉट द वे आई वांट पद्मश्री। तो बट हैविंग सेड दैट, मुझे पता है 2 लोगों ने मेरे पीछे ये करके ट्राई किया हुआ है, एंड देन हाँ, तो मेरे साथ दोस्त थी पर मेरे से 10-10 साल बाद में आए हुए हैं, उनको मुझसे 6-6 साल पहले मिल चुका है पद्मश्री। बिल्कुल। तो हमने उस दिशा में देखना छोड़ दिया था ऑनेस्टली। अब जो तुम आई हो तो क्या आई हो, तो व्हेन आई गॉट द कॉल इन, आई वाज इन कैलकाटा शूटिंग फॉर अ शो, मेरा इंस्टेंट था, आपको लगता नहीं बहुत देर हो चुकी है? मेरे अंदर में तो फट रहा था वो चीज़ कि यार इतना टाइम क्यों लिया है इन्होंने। फिर मैंने बोला ठीक है ऐसा करता हूँ, मैंने कुछ 5 मिनट उनसे बात की और मैंने यही कहा कि ये अब मिल रहा है ऐसा, और ये ठीक है या नहीं है, अब मुझे बताओ। कहते हैं हाँ नहीं ठीक नहीं है। तो फिर मैंने बोला गिव मी 5 मिनट्स सर, आई लेट मी स्पीक टू माई फादर। तो मैं बैठा जज की कुर्सी पर बैठा, एंड देन आई थॉट टू माई सेल्फ, क्या मैंने इसकी लॉबिंग की है? नहीं।
अपने आप आया ना, ये ईश्वर का प्रसाद है। फिर मेरे फादर को बताया, ही स्टार्टेड क्राइंग। मैंने मेरी फैमिली को बताया, मेरी मदर इन लॉ को पहले बताया। तो मेरा बेटा भी जब वहाँ पे आया अवार्ड फंक्शन पे, तो उसको, हालांकि वो दुबई में रह रहा है, वहीं पे पढ़ाई कर रहा है, उसको इतना नाज हुआ भारत के इतने प्राइम अवार्ड का हिस्सा बन के। कहते हैं छोटू, आई फेल्ट वेरी प्राउड। छोटू बोलता है मुझे वो, छोटू आई फेल्ट वेरी प्राउड। इतना एक्सप्रेसिव नहीं है वो, वेरी प्राउड टू बी इन दैट प्लेस, द प्रेसिडेंट, the prime minister with the cream, and I felt very special being in that द ग्रैंड हॉल। जो राष्ट्रपति भवन में आके उसको इतना अच्छा लगा। तो हम सबके लिए बहुत एक अविस्मरणीय एक्सपीरियंस है। वो पल कैसा था जब प्रेसिडेंट को आप मिले और प्राइम मिनिस्टर भी सामने बैठे हुए वो देख रहे थे? हाउ वाज दैट मीटिंग बिटवीन यू एंड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट? व्हाट वाज इट लाइक? वैसे तो मैं मोदी जी से पहले भी मिल चुका हूँ, और हम वो जानते हैं कि हम उनके काम के कायल हैं, और हम ऐसे नहीं कि हम किसी पार्टी के साथ में हैं या किसी बाप होता है ना। आप अपने बाप को बाप ही मानेंगे। अगर मान लो कुछ आपको आपके बाप की बात पसंद भी नहीं हो, तो भी आप बाप को गाली तो नहीं दे सकते ना। तो ये अलग बात है कि हमें मोदी जी पसंद है, ना भी पसंद होते हम तब भी बाप ही समझते हैं, क्योंकि वो देश का बाप हुआ ना, एक हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते हैं, राइट? सो वी हैव रिस्पेक्ट फॉर। अगर ये ना होते, कोई और होते, जब मनमोहन सिंह जी थे तो वो भी हम उनको सम्मान करते थे कि जो भी होता है, तो वी लुक एट द हेड ऑफ अवर स्टेट, नेशन, राइट, विद रिस्पेक्ट। सो हम उनको वैसे ही पसंद करते हैं। So, what is it that you want to achieve in the next 10 years or so, that you have had Padma now? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं मानता, कोई अभिलाषा नहीं है। हाँ, ये है कि स्वस्थ रहे, और अगर मौत भी आनी होगी तो फटाफट आ जाए। ऐसे वो तड़पन वाली सब होनी चाहिए, उतना है मुझे। Doing practice at home? What are you talking? Of course, it's For a man of your stature, with such powerful voice, with such powerful chords in your throat, which is a God gift, I still find it unbelievable for a man like Sonu Nigam's stature has to do this riyaz. सारे से पूछने में बैठी, उससे पूछो कितना रियाज करता हूँ मैं। What is the thing like? I mean, you wake up at what time in the morning? No, there is no. You after a point you cannot fixate your life like this. आजकल तो आप गाड़ी में बैठे हैं, आपके पास में तानपुरा चल रहा है, आप गाड़ी में रियाज कीजिए, आप फ्लाइट में रियाज कीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बैठ के टाइम निकालने की। Is there something that you would eat, particularly in order, regimen that you have had fixed for diet for during your childhood till now, which नहीं, you ऐसा follow? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है। You have been a vegetarian, non-vegetarian, or you would avoid? I eat everything. I don't have prawns and I don't have shellfishes. Sometimes I would turn vegetarian, but since I travel too much, I don't get the diet of my choice when Right. you're traveling. And And that no, is the no problem. abstinence from alcohol or otherwise. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पर हमने तो कभी टिल द एज ऑफ 35-36 की एज तक हमने कभी पार्टी भी नहीं की लाइफ में, Hmm. कभी किया नहीं। घर में तो ना कोई आता था, ना हम कहीं जाते थे। Right. बाद में जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो हमने थोड़े सोशलाइज करना शुरू किया। अदरवाइज आई नेवर वेंट आउट बिकॉज माय फादर हैड टोल्ड मी समथिंग दैट या तो तू अभी ऐश कर और बाद में धक्के खाना, Hmm. या अभी धक्के खा ले Hmm. और बाद में ऐश करना। Right. Mr. Nigam, you also chose to have a alternate career in the Middle East, where you also chose to reside there as well. Was there a conscious effort that you wanted to move ना, out? ना, ऐसा कुछ नहीं। सी लाइफ आई सेड नेवर प्लान लाइफ। आई ऑलवेज टेल पीपल नेवर प्लान, अपने आप हो जाता है। पता नहीं क्या मुझे, व्हेन आई लुक बैक आई डोंट नो व्हाई माय सन सेड कि Yeah, I want to go there. दुबई चलते हैं, थोड़ा दुबई में पढ़ाई करूँगा मैं। हम 2009 में भी अमेरिका शिफ्ट होने वाले थे। हमने ग्रीन कार्ड ले लिया था, मेरा बेटा अमेरिकन सिटीजन है एक्चुअली। तो हमारा दिमाग तब से चल रहा था कि थोड़ा इंटरनेशनल बेटे को एक्सपोजर होना चाहिए। Correct. If not social, but you like to make people laugh with your mimicry as अभी well. भी करते हैं। whenever I'm hosting an award function, I'm expected to make people laugh. Right. अभी भी करते हैं, अभी भी इस साल भी किया था। You had a fallout with Bhushan Kumar, which became very evident when you released certain videos and you talked about. Would you No, still? it's just about we have been, all the singers collectively have been kind of advocating the singers' right, and we have been asked ताकि वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, एक्सेप्टेबल। एंड गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अमेंडमेंट बना के रखी हुई है उसको। So have the problems been resolved between you and him? हाँ now? हाँ हाँ, it was all been। तो एक वो दौर भी था जब हम लोग सारे, आप सब कंटेम्प्रेरीज को, चाहे वो जैसे बाबुल सुप्रियो हो, आप हो, शान हो, के हो, हु डू यू मिस द मोस्ट हैविंग वर्कड विद, एंड कितना आपको वो याद आते हैं वो पल, खासकर क्योंकि अब के रहे नहीं, बाबुल पॉलिटिक्स में चले गए। मुझे बड़ा दुख हुआ यार के का, क्योंकि मैं वो जब एक्चुअली इस साल जितने भी लोग गए हैं
मैं था ही नहीं यहाँ पे उनके लिए। लता भाई गई, मेरी माँ है वो, तो दूसरी बार माँ गई मेरी, तो मैं तब भी नहीं था। आई वॉज इन कैलकाटा बिटवीन द शूट, तो जब तक मैं पहुँचता भी तब तक भी हो जाता वो। वहाँ उनके पास के गए, तब भी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, उलूरू में था, तब भी मैं नहीं आ पाया। भूपेंद्र सिंह जी गए, तो भी मैं उनके लास्ट उसमें नहीं आ पाया। शिव कुमार शर्मा जी गए, तो मैं जब तक पहुंचा तब तक उनको चिता में आग नहीं दे रही थी। आई वॉज नॉट देयर ओनली, पता नहीं क्या हुआ। और जैसे मैं अभी हूँ तो ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आई वॉज ऑलवेज आउट ऑफ इंडिया, बट बाई चांस आई वॉज नॉट मेंट टू अटेंड द लास्ट राइट्स ऑफ एनीबडी। You worked in movie where Lata ji sang alongside you. ऑफ कोर्स लता जी के साथ वीर ज़ारा में गा रखा वीर है, ज़ारा था। मुझसे दोस्ती करोगे उसमें गा रखा है। दिल से भी One था to क्या? Kapoor, दिल से में नहीं, मेरा सोलो था, उनका सोलो था। अच्छा। लेकिन वैसे हमने काफ़ी काम कर रखा है, हम तो शी वाज लाइक उनका जी। पर क्या है कि यू कांट आस्क पीपल टू वेट, कभी ना कभी जाना होता ना, मेरा बिल्कुल। टाइम आ गया था, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन वो शी इज जी। ऑलवेज विद अस, Right. ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद अस। एक अगर मैं बात करूँ, क्योंकि साथिया मूवी भी तभी आई जब आपने वो बाइक पे चलते हुए वो गाने बड़े पॉपुलर हुए उनके, लोग मध्यम मध्यम करते हुए जी। और फिर उस शब्द का इस्तेमाल मुझे लगता है काफ़ी मूवीज़ में और भी हुआ, सूरज हुआ मध्यम में भी। हाँ। तो वो जो दौर था ना, मुझे लगता है सोनू जी उन्होंने आपकी एक रोमांटिक छवि भी बना दी और स्टेबलाइज सॉन्ग्स आते गए। साथिया साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी, साथिया साथिया सुन के हमने सारी बेली हंसी, हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे, सोनी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे। आज की डेट में भी आपको क्या लगता है कि वो जो बॉर्डर में जो गाया हुआ गीत है वो क्या मैसेज पहुंचाता है उन जवानों के लिए या उन किसानों के लिए भी जो वहाँ पे जाके मौजूद हैं बॉर्डर पे, एलओसी पे, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो, जिन ज़िलों में मैं रहा हूँ अपने दौर में, मुझे याद है वो वहाँ पे गाने अभी भी चलते हैं। ये सब भाग्य की बातें होती हैं, इंसान प्लान नहीं करता है सब चीज़ें। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं सिंगर नहीं होता तो मैं किसी ऐसे प्रोफेशन में होता जिसमें बहुत एग्रेशन होती। हालांकि मेरा काम मुझे बहुत पसंद है, बट आई एम मतलब मेरा गुस्सा बहुत तेज़ है। अगर कुछ मैं ठान लूँ या मान लूँ तो मैं आई एम अ फेरोशियस इंडिया लवर। आप देशभक्ति की बात करें, कहीं ना कहीं हमने इतने फिल्म सितारे देखे, चाहे वो हेमा मालिनी जी हो, सनी देओल हो, विनोद खन्ना साहब हो, पॉलिटिक्स में ज़रूर आए। एट सम स्टेज ऑफ योर करियर वुड यू वांट टू वर्क with any political party of your choice, maybe you want to serve the nation in any capacity as a member of parliament or as a legislator? 90s में मैं बोलता था ऐसा कि फ्यूचर में मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा, बिकॉज मेरा दिमाग समझता था कि मुझे ये सब एक्यूमेन पता है टू हैंडल, टू बी स्ट्रॉन्ग आता था मुझे। लेकिन आई एम लीडिंग टू ब्यूटिफुल अ लाइफ राइट नाउ टू अलाउ माई सेल्फ टू बी into politics. अभी नहीं। Who has really influenced you from the heart कि नहीं ये वो मुख्यमंत्री है जिसने काम भी अच्छा किया और दबंग भी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए ऐसे सब में चुनना ठीक नहीं है। अभी हमें लोग सोचते हैं कि राइट विंग है वो है, लेकिन अगर आप पार्टी को अलग कर दें और ये ना सोचें कि मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा से, मैं खुद भी ऐसा हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा कड़क होना चाहिए। तो इसीलिए आई फील डिसिप्लिनरी हैज़ टू बी देयर। एंड अभी तक जो मैंने देखा है कि आई फील योगी आदित्यनाथ जी इज़ अ डिसिप्लिनरी, एंड आई फील और लोगों को भी, और वो हर पार्टी से हो, चाहे वो, मैं नहीं कहता कि बीजेपी से ही हो, आपके लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, कोई भी हो, थोड़ा कड़क होना चाहिए। You find those qualities admirable in him? In anyone, everyone has to be strict. You have had a few opportunities to meet him in flesh. Yeah, I met him twice. Physically, I've seen sort of photographs. Once I met him. Twice I've met him. Twice you have met him. I would finish this interview by congratulating you for the wonderful career that you have had so far. Thank you. We wish you, not just from the journalistic fraternity, the media fraternity, but also for every Indian who has seen you become a sensation for this country and bring laurels
for India, not just within India but outside as well. It has been a pleasure meeting you, Thank sir. you so much. Mr. Thank you Nigam, very and I hope you continue to be an icon for all of us Thank you very for much. years to come and for decades to come.